Hi guys, my name is Naman and today I am heading to see the world's tallest statue, the Statue of Unity, which is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel, and it is located in Ekta Nagar, which is around 100 km from Vadodara. I am going with my friend and taking you guys along with this journey. So keep in touch with this video and enjoy. So guys, we booked the cab and just reached at the Ahmedabad railway station. You can see that board written Ahmedabad in Hindi, English and Gujarati. So our train is scheduled to depart at 7:55 a.m. and we will reach there by around 11 a.m. So the journey is approximately 3 hours long and we'll keep you showing the views from the train and everything. So stay connected. Can you see that AC coach behind me? That is the only AC coach in this train. And we have already dropped our luggage on our seats and just waiting for the train to depart. So guys, we have reached our destination Ekta Nagar and we have also checked into the hotel. The name of the hotel is Madhav Palace. It is cheaper as compared to the nearby hotels. We booked it in just 1400 rupees for one day and we'll leave for the Statue of Unity soon. We'll also do jungle safari and we'll enjoy the Bhul Bhulaiya as well. So let me show you the room. So here is my friend Ayush. How are you feeling? It's a great feeling, I think, away from the noise of the city. And I'm very excited that I'm going to see the Statue of Unity, which is the biggest statue in the world. So very excited about that. And also one very good thing about this place is that, you can feel the beauty of nature here. Yeah, I mean, so much open space. Open space is there, hills are nearby, Yeah. and people are also kind of very warm, very, lovely by nature. So I think it's a good place away from the noise of big cities, and one should come here to explore, especially on the weekends. Yeah, definitely. So guys, you see that Ayush is enjoying too much, and so I would like to ask you, when are you coming here? See the outside beauty, guys. There is a hillock. So many hillocks are here. Nice open space. I like it. Guys, the food is too much tasty. I have just tasted it. Now Ayush will tell you. It's amazing, it's tasty, authentic Indian food, I must say. Amazing. Yeah, it is too much tasty. Like this hotel is, I would give 5 star to this hotel for this specially. तो गाइस, परना गीला करके भरी दोपहरी में हम हैं निकल चुके स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। वहाँ पहुँच के अब आपको दिखाते हैं ताऊ देवीलाल नहीं, वल्लभ भाई पटेल। गाइस, मैंने सोचा थोड़ा आपको यहाँ के खुलेपन का एहसास करवा दूँ। A lot of hills you can see, a lot of open space. तो गाइज़, हम ऑटो करके रेलवे स्टेशन वापस आए। यहाँ से फ्री में बस चलती है जो सीधा आपको वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पास पहुँचाती है। ये फ्री चलती है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसका यूज़ करिएगा आगे। गाइस, फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें पहुँचना था। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। अभी आपको दिखाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी,
वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी, और जो व्यू आ रहा है पहाड़ों का और नदी का, मस्त दिखाता हूँ। देखा व्यू नदी और पहाड़ का, ये एक नंबर मज़ेदार। मुझे तो, आप तो ये वीडियो में देख रहे हो, मैं आंखों से देख रहा हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। अब वल्लभ भाई पटेल दिखाता हूँ, देखो गाइस व्यू। फाइनली हम अंदर आ गए हैं और हमने टिकट ले लिया है। 380 की एक है, जिसमें आप सरदार भाई पटेल को देखोगे और लाइट शो भी देख पाओगे, और साथ ही साथ उसके अंदर जो लिफ्ट है स्टैचू के अंदर, उस लिफ्ट से बहुत ऊपर जाके वहाँ से व्यू देख पाओगे। अभी आपको दिखाएंगे। गाड़ी लेके जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, मूर्ति तक। पैरों तक ले जाएगी। हाँ, पैरों तक। पैरों तक। भाई सरदार पटेल जी का वो बना। गाइस तो फाइनली बहुत ही स्लो मोशन में मैं आपको ये मूर्ति दिखाता जा रहा हूँ धीरे धीरे ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ी देर में हम इसके अंदर एक लिफ्ट लगी है, उसको लेके कम से कम इनकी छाती के लेवल तक जाएंगे और वहाँ से बाहर का व्यू देखेंगे। ये वो एंट्री जहाँ से जाके हमें छाती तक जाना है। चलो, ये अंदर का व्यू है जहाँ से हमने एंट्री मारी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मस्त एसी चल रहा है। धूप में ऐसी तैसी हो गई, अब आ रहा है असली मज़ा। असली मज़ा मेरे साथ ही आता है। सो गाइस, ये वो वाला एलिवेटर है जो हमको उनकी छाती के लेवल तक पहुंचाएगा। अब हम इसकी लाइन में लगने वाले हैं, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं है। यहाँ नीचे घूमना भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, बढ़िया फ़ोटोज़ आ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं टीवी से बाहर निकला हूँ। आ गए हम छाती के सेंटर में। 45th फ्लोर है ये, 45th। अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ बाहर का। यहाँ से डैम भी दिख रहा है। गाइज हेयर वी कैन सी द मैकेनिज्म कि ये जो बनी है बिल्डिंग, मूर्ति, स्टैचू, उसका मैकेनिज्म है। थोड़ा बहुत झलक है इसकी। बैकग्राउंड में देखो यार, क्या सीन है, कितना मस्त लग रहा है यार, क्या व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है। कितने पहाड़ ही पहाड़, पानी, नदी, और सामने मैं वल्लभ भाई पटेल जी को देख पा रहा हूँ। अभी आपको वही दिखाता हूँ, बिल्कुल फेस दिखेगा उनका, और लंबी मूर्ति मस्त। देखो देखो, नीचे से ऊपर दिखा रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल क्या है ना कि पीछे इसके सूरज है तो ये थोड़ा ब्लैक आ रहा है, पर आप देखो साइज देखो मूर्ति का, कितनी लंबी है, कितना मज़ा है यार। वाह भाई वाह।
गाइस अब होने वाला है नाइट शो, आपको दिखाने वाले हैं। लाइटें वाइटें जलेगी, सिस्टम हैंग हो जाएगा, इससे अगली वीडियो वही है। विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सदा। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसर गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी डाट भाई के 5 बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबेन और बेटे ताया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। रीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए।
लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और चीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कसमें खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बची। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा।
स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छैनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरकार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशयता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महान अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। देश को बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के समान सा पुरुष प्रबल, स्वदेश का सम्मान है पटेल को, स्वदेश का सम्मान है, स्वदेश का सम्मान है पटेल को, स्वदेश का सम्मान है। ऊंचाइयां आकाश को छुए, गहराइयां समुद्र की लिए, कदम अधिक जमीन पर चले हुए, आने वाली शान है, आने वाली शान है। आइए अब देखते हैं कि अपने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देती 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। गगन चुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए
सबसे पहले नदी पर 4,500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का वॉल बनाया गया। इस कंक्रीट बोर्ड के साथ लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमिंग पर 6,500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। सोचिए कि 182 मीटर ऊंचे इस भव्य भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और मेहनत लगी हो। 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील, 700 मीट्रिक टन ब्रॉन्ज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज एक वर्ल्ड आइकॉन है और इसे यूनिक बनाने में एक सेकंड की ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 100 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और 3,000 मानव दिल। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% मानव सम्मान मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने। कुल मिलाकर केवल 46 दिन। इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनोखी अद्वितीय विशाल प्रतिमा जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं चमचमाती रहेगी। परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 7.25 करोड़ जनता और तकलीफ को पाया ऐतिहासिक निर्माण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है
इस अक्षय भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश है। भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। Please stand up for the national anthem. गाइस हम पहुंच चुके हैं डैम पे, और वो भी टैम पे। नहीं टैम पे नहीं, हम हो गए हैं लेट एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड द गेट। वेयर इज दैट? लेट मी फाइंड एंड विल शो यू द डैम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। तो गाइस आज का दिन संपन्न हुआ, हमारी हालत खस्ता हुई। अब कर रहे हैं व्लॉग को बंद। आज के लिए बंद हो चुका है ये व्लॉग, शटर बंद कर दिया हमने दुकान का। बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।